Good morning students. Now we continue our chapter 0 mathematical physics and we continue our topic integration. In our previous topic we studied about the integration formulas, integration of polynomials and integration of products and so on. Now we start the trigonometric formula related to the integration. So trigonometric formulas which related to the integration. We also discussed in our previous class that integration is the reverse process of the differentiation. That means in differentiation we differentiate the trigonometric functions which completely invert in process of integration. यानी जो डिफरेंशिएशन के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया था वो डिफरेंशिएशन या जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा. कैसे होगा वो देखिएगा. सबसे पहले हम फंक्शन ले रहे हैं, दिस इज sin x dx. Then sin x dx, this is the integration of minus cos x plus c. Here the sin x differentiation of minus cos x, जब भी integration of minus cos x, जब भी differentiation क्या होता था, sin x का differentiation होता था cos x. Okay, here the sin, अच्छा okay, कौन सा integration है ये? This is the indefinite integration, so we add plus c. Now the sin ax dx, that is minus cos ax. Up here the a is constant, so in case of differentiation we take the constant a outside, but in case of integration we take in upon. Now sin ax plus b dx, again minus cos ax plus b by a plus c. So these are the similar process, but the symbol becomes changes and the constant place becomes changes due to the integration. Okay, now the cos x formula, then cos x formula says that cos x dx equals to sin x plus c. In case of differentiation we take its negative, then cos ax dx equals to sin ax by a plus c, and the cos ax plus b dx equals to sin ax plus b by a plus c. Okay, this is the cos formula. And now the sec formula, then sec square x dx. In case of differentiation, the differentiation of tan x is sec square x, but the integration of sec square x is tan x. Okay, the differentiation of sec x is sec x tan x. I hope that you remember the formula of differentiation, so you know very well that sec x differentiation of sec x is sec x tan x, and here the differentiation of sec x tan x is integration of sec x tan x is sec x. Okay, now the 1 by x dx equals to log ex, then ex dx equals to ex plus c. This is only the one function, exponential function, in which the integration and differentiation both are same. But if we take here some constant quantity, just like eax dx equals to then eax by a plus c, the constant term in denominator. So these are the integration formulas related to the trigonometric functions. Now we are starting the use in physics. इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या यूज है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन फिजिक्स. ओके, तो वी नो द एक्सेलरेशन, वी नो द वेलोसिटी एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट. इफ वी इंटीग्रेट एक्सेलरेशन देन वी गेट वेलोसिटी, and if we integrate velocity then we get displacement. How it is possible? Then we see here, we know that the v equals to dx by dt, that is the differentiation of displacement with respect to time is called the velocity. Okay, now here dx equals to v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो बहुत साइड इंटीग्रेशन लिया हमने,
देन दिस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज सिंपल, x वी नो वेरी वेल, हम कर चुके हैं हम पहले, देन दिस इज v dt। तो दैट मीन्स अगर हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑपरेटर, इफ वी इंटीग्रेट द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। हियर सी दैट इफ यू इंटीग्रेट द वेलोसिटी देन यू गेट द डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? अगेन v इक्वल्स टू dx by dt, that is differentiation of x with respect to time gives the velocity, cross multiplication, both side integration, then x equals to v dt. Okay, now we take similar process of for acceleration, then a equals to again dv by dt, then dv equals to a dt, both side integration करते हैं, then this is v, then a dt. So if we integrate the velocity then we get a dt. Okay, so this is the process. Here the acceleration integrate the velocity and velocity integrate the displacement. So this is the measure and this is the important formula which are used in physics. Now we take some questions related to the integration. So this is the first question is the velocity of an object of mass of 5 kg at an instant t is given by the expression v equals to 2t cube plus 3t square plus 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एट टाइम t। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो ये तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी आपको गिवन है 5 kg, एक पार्टिकल का मास है, ठीक है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप वेलोसिटी का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन, पहले भी कर चुके हैं हम शायद इस टाइप का क्वेश्चन। देन 3t स्क्वायर प्लस 10, नाउ वी टेक सेपरेट देम, तो कांस्टेंट क्वांटिटी टेक आउटसाइड, okay, now this is 2 into t cube, this is 3t square, then 3 into 2t plus 0. Okay, now this is 6t square plus 6t. अब m equals to 5 kg, then acceleration is 6t square plus 6t. We have the time is t equals 4 second. तो acceleration 8, t equals 4 second. तो a equals to 6 4 square plus 6 into 4, this is 96 plus 24, that is 120. This is a. So now F equals ma, तो m तो 5, this is 120, this is 600 Newton. This is your answer. So this question is related to the differentiation. Okay, now we done a question related to the integration. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने ढंग से इसको समझा है तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, और इसके बाद फिजिक्स में कुछ भी नहीं बचा। फिजिक्स इज वेरी सिंपल। तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फोर्स, एफ इक्वल्स गिवन है आपको 5x plus 2 न्यूटन, ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम x इक्वल्स 1 मीटर टू x इक्वल्स 2 मीटर, x इक्वल्स 1 मीटर टू x इक्वल्स 2 मीटर। तो वर्क डन देखना है आपको, अब समझना है आपको, सबसे पहले वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वर्क डन। आपको लिमिट मतलब डिस्टेंस x इक्वल्स 1 से कहाँ दे रखी है, x इक्वल्स 2 तक, तो w इक्वल्स 2, ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं dw इक्वल्स 2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dw इक्वल्स 2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन हियर इफ वी इंटीग्रेट द बोथ साइड, then dw equals to f dot dx। तो dw का तो सिंपल क्या हो गया, w। अब f dot dx, f की वैल्यू क्या है 5x plus 2 dot dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है 1 से 2, ओके। तो नाउ हियर w equals to 5x dx 1 to 2 plus 2
dx 1 to 2। लिमिट लगा देंगे क्योंकि हमें लिमिट गिवन है। अच्छा, x इक्वल्स दे रखा है, इसीलिए मैंने जो इंटीग्रेशन किया है वो x के रेस्पेक्ट में किया है। अगर सपोज यहाँ r इक्वल्स 1 मीटर टू r इक्वल्स 2 मीटर होता तो फिर मैं फॉर्मूला क्या लगाता, f डॉट डी आर। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए dw का मतलब होता है स्मॉल वर्क डन, तो अगर स्मॉल वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा, तो dw इक्वल्स टू f डॉट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन w इक्वल्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया हमने, लिमिट कहां से कहां तक ली मैंने 2 to 1, देन 5x प्लस 2 dx, 5x dx प्लस 2 dx। ओके, अब और सॉल्व करते हैं हम इसको। तो दिस इज 5x dx का तो क्या हो जाएगा, x 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 लिमिट 2 to 1 प्लस dx का सिंपल x होता है ये हम पहले निकाल चुके हैं, लिमिट 2 to 1। ओके, तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। अब इसे हम और सॉल्व आउट करते हैं। तो जब हम इसे और सॉल्व आउट करेंगे तो 5 ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 1 प्लस 2x 2 to 1, देन 5/2 बाहर निकाल लिया। अब लिमिट किसके प्लेस पे पुट होती है पहले बताया आपको, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट हमेशा उसके प्लेस पे पुट होती है। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसके प्लेस पे आएगी, x के प्लेस पे। तो पहले तो 2 आ गया, फिर 1 आ गया, इसी तरह से यहाँ 2 आ गया, फिर 1 आ गया। तो 5/2 दैट इज 4 minus 1 प्लस 2, 2 minus 1 इज 1, तो ये हो गया आपका 5/2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 15/2 प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको 19/2 और पूछा गया वर्क जूल। तो दिस इज योर आंसर। तो इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ वी टेक द अनदर क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्स गिवन है, वर्क डन पूछा था, लिमिट दे रखी थी। ये लिमिट एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का, x इक्वल्स 1 से x इक्वल्स 2 तक का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 5k कैप। ओके, अब हियर i कैप, j कैप एंड k कैप, दीज आर कॉन्ट्रोवर्शियल, दीज आर कंफ्यूजेबल बिकॉज वी अभी हम लोगों ने इनको स्टडी नहीं की है। तो दीज i कैप, j कैप, k कैप आर द यूनिट वेक्टर्स। अभी हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे ये, और ये यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को। तो अभी बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, अभी हमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा टॉपिक आएगा मैं बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसका भी यहाँ पर कोई यूज भी नहीं है। ओके, तो आपको ये वेलोसिटी गिवन है, आपसे कहा गया है इसकी पोजीशन निकालिए t इक्वल्स 2 सेकेंड पे। क्या फाइंड आउट करना है आपको, पोजीशन। पोजीशन का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है कितने सेकंड पे, t इक्वल्स 2 सेकंड पे, ये फाइंड आउट करना है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू v dt, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई आपकी 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 5k कैप dt। नाउ 3i कैप अलग अलग कर लेते हैं इसको, t स्क्वायर डी टी प्लस 2j कैप t डी टी प्लस 5k कैप डी टी। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो 3i कैप t क्यूब बाई 3, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। 2j कैप यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ dt है तो सिंपल t हो जाएगा। अब t इक्वल्स कितना पुट करना है, 2 सेकेंड, तो पुट कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, t इक्वल्स 2, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ये, प्लस और सॉल्व कर लें इसको। तो 8i कैप 4j कैप प्लस 10k कैप। तो दिस इज योर पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, या आपका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट। तो सिंपल सा है कि अगर आपको वेलोसिटी गिवन है और आपसे पोजीशन पूछा गया है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान समझिएगा।
if you have a velocity and you find out the position, then you integral, and if you have the position and you find out the velocity, then differentiation. तो just opposite है एक दूसरे का, inverse process है, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर. एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स. ओके, अब इस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स में प्रोडक्ट फॉर्म है. कौन सा फॉर्मूला लगा? आइलेट. एक्स तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया. फॉर्मूला क्या है हमारा प्रोडक्ट का? फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इन सारे के प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन. तो सॉल्व करें इसको. एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स. ओके, यहां तक का काम पूरा. माइनस सिंगल, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऐसा कैसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑपरेटर सॉरी, ये ऐसा कैसा रहेगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 2x डिफरेंशिएशन. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स. दिस इज डी एक्स. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ये माइनस प्लस. ठीक है, तो 2 को भी चाहो तो बाहर निकाल दो. अंदर कौन बचा? एक्स कॉस एक्स डी एक्स. अब अगेन ये फिर प्रोडक्ट बन गया. अब समझिएगा, अगेन ये क्या बन गया? प्रोडक्ट. तो ये आपका वापस फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, क्योंकि ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है. तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में. अगेन ये फर्स्ट और सेकंड. तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बहुत सिंपल है. प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू करेंगे और स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो यू फील वेरी इजी. तो ये फर्स्ट वापस फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन. तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस एक्स का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का साइन एक्स और डी एक्स. ठीक है, तो 1 इंटू साइन एक्स होगा, तो इसका अगेन इंटीग्रेशन एक बार और कर दीजिए बस. तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स. तो दिस इज योर आंसर. सिंपल, कुछ नहीं करना. बस इस जगह हमने देख लिया कि अगेन प्रोडक्ट फॉर्म आ गई, तो फिर वही फर्स्ट सेकंड चूज कर लिया, वही फॉर्मूला लगा दिया और वही उसी टाइप से इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया. ओके, इट्स सो सिंपल. नाउ अगेन वी टेक अनदर क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स ई पावर 2x डी एक्स. ओके, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस. वही आइलेट याद रखो. एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल सेकंड है. फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन. ओके, नाउ द x e पावर 2x by 2 माइनस x का हो जाएगा 1, देन e पावर 2x by 2 dx, देन x e पावर 2x by 2 माइनस 1 by 2, इसका अगेन इंटीग्रेशन होगा, देन by 2 प्लस c, क्योंकि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है. तो x e पावर 2x by 2 माइनस e पावर 2x by 4 प्लस c. दिस इज योर आंसर. ओके बेटा, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और कंप्लीट ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं. जो बचे हुए 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, तो इंटीग्रेशन पार्ट ही आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब इस इंटीग्रेशन पार्ट के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मेनली टॉपिक्स थे आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. मैथमेटिकल जो फिजिक्स में काम में आने वाले टॉपिक्स थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. अब एक छोटा सा टॉपिक चलता है प्रीफिक्स वाला. तो प्रीफिक्सेस में जब अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले मैं आपको प्रीफिक्सेस बताऊँगा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे लेते हैं. ओके बेटा, थैंक यू. और बहुत जल्दी अब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. 1 से 2 डेज़ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भिजवा दूंगा
classes. In that case we started the problem classes, doubt classes. If you have any doubt, then you come to school to solve your doubts with your teacher. Okay, so I informed you that what time एंड व्हाट सब्जेक्ट, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट की क्लास, डाउट क्लास लगेगी, वो डाउट क्लास लेने आपको आना है। उसके लिए आपको एक कंसर्न फॉर्म मैं यहाँ से प्रोवाइड करवाऊंगा। वो कंसर्न फॉर्म आपको पहले पेरेंट्स को ले जाकर दिखाना है। अगर वो कंसर्न देते हैं तो फिर आपको उनसे साइन करवा के और यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करने आना है। ओके बेटा, थैंक यू।